So yesterday we started with NumPy, right? But due to some issue we could not complete it. So आज हम उसको complete करते हैं, complete या फिर continue करते हैं, ठीक है? One second, इसको मैं okay. So let's start with today's lecture जिसमें हमने NumPy सीखा था. Okay. So let's start with today. All right. आवाज आ रही है? All good. Cool. Mm, NumPy. Okay. So the next route or overview ऐसा रहेगा कि we will like spend a week on the NumPy and उसके बाद we will start one more interesting topic that is pandas ठीक है. So pandas and NumPy मिलके these are very two most important libraries in terms of data science कह लो या AI कह लो, ठीक है. So NumPy पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो so that uh, like you master this while learning only, ठीक है. और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. और दोज हु आर न्यू तो पाइथन का एक और बैच स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे वंस आई गेट अ सफिशिएंट स्टूडेंट्स, ठीक है. ऑलराइट. So NumPy, what is NumPy, right? NumPy we understood it is a numerical Python. Numerical Python meaning जो all जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे थे, ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे थे लिस्ट में, इसमें लिस्ट में यू कुड एबल टू फाइंड द मीन मीडियन और प्रोबेबिलिटी तो नहीं कर सकते थे वहाँ पर, लेकिन स्टैटिस्टिकल चीज़ें वहाँ पर कर सकते थे. लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वर एबल टू डू इन द लिस्ट. बट why NumPy got discovered? Just because of NumPy is faster than list. Okay, NumPy is faster than list. And why NumPy is faster? Because NumPy has a homogeneous data collection of a homogeneous data type, and list has a heterogeneous. So ये speed इतना क्यों matter करता है, right? Because so when you will be dealing with a huge data set going ahead, like data of entire decade of transactions, things like that. Okay, like thousands of or lakhs of rows, millions of rows will be there. और उस डेटा पे अगर आपको काम करना है, then your list will not work. ठीक है, list will not work. या फिर usually what we do for loop लगा देंगे या while loop लगा देंगे. And using these loops we try to, you know, access the items from the list or the other data types. But when this data is very huge, it becomes very, you know, time consuming process to work on that. So that's why NumPy got introduced. Okay, NumPy got introduced because that is NumPy में हम almost every mathematical operation कर सकते हैं. And we can also uh, every mathematical operation कर सकते हैं, and we can also go for and it's a faster one also, ठीक है, it's a faster one. Going ahead, so we have also seen how to import NumPy, ठीक है. So usually we say import NumPy as NP, ठीक है. This is an alias, this is a name. हम NumPy को एक नाम दे रहे हैं, ठीक है. We are giving a nickname to NumPy, that is NP. And whenever we will use NumPy, we will use as NP. तो आगे जाके you can see array में np.array यूज कर रहा है, ठीक है. ओके.
Next we saw how to convert any list, how to convert any list into an array. ठीक है, how to convert any list into an array, ये चीज हमने देखी. So इसमें हम क्या क्या सीखे कि let's say there is one uh, let's say there is a list. ठीक है, this is a list. इस लिस्ट का टाइप चेक करते हैं हम, तो what we will get a list. ठीक है, अगर इसको मैं रन कर दूं, it will be a list and this it will look like this. ठीक है, it will look like this. And if I want to change this into an array, so what I will say, let's say array equals to np as in numpy dot, अगर मैं यहाँ पर array टाइप करता हूँ, array क्यों नहीं आ रही, हाँ, array टाइप करता हूँ, so I will get this function and I can straight away pass this list one. ठीक है, यहाँ पर directly list one भी pass कर सकता हूँ मैं like this. And now if I print array, so what I will get, I will be converting this into the array. ठीक है, I will be converting the list into an array. So while converting the list, we got to see there is one thing, which is इस list में there was one float, other are integers, but when we convert into a array, everything changes to a float. ठीक है, so that is why array is called as homogeneous and list is called as heterogeneous. Why heterogeneous? Because list can have multiple type of data types. जैसे उसके अंदर हमने float डाल दिया, string डाल दिया and all those things. We can add anything in it, but when we try to convert it into an array, it changes the data type of other elements too. ठीक है, it changes the data type of other elements too. So this is something that we must understand. ठीक है, and then we also try to convert this uh, you know like if we add a string, if we have a string element in the same array or same list, it will convert everything into a string. But let's say if we don't have string, we have an imaginary number. यहाँ पर हम देख सकते हैं, we don't have string, we have an imaginary number. 6 plus 0j is an imaginary number or complex number कह लो. ठीक है, 6 is a real part, 0j is an imaginary number. imaginary number क्या होता है? imaginary number होता है, imaginary number होता है अंडर रूट ऑफ -1. ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1. तो अंडर रूट ऑफ -1 को इमेजिन नंबर बोलते हैं. ठीक है, इन द मैथमेटिकल टर्म एक्चुअली. तो ये अगर ये आपको पता भी नहीं है तो भी इट डजंट मैटर. ओके, एनीवेज, सो इस लिस्ट को वी वांट टू कन्वर्ट इनटू एन एरे. तो हमने क्या, इस लिस्ट में वी हैड दिस व्हाट एन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैड. सो अगर एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इट विल कन्वर्ट एवरी नंबर और एवरी एलिमेंट इनटू एन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एन कॉम्प्लेक्स नंबर. And then if you have float, तो it will convert everything into a float. तो there is a sequence. अगर आपके list में string है तो everything will get converted into a string. अगर string नहीं है, complex number है, तो everything will get converted into a complex number. अगर दोनों भी नहीं है, float है, तो everything will get converted into an float. और अगर सिर्फ integer है तो it will be an integer only. ठीक है, it will be an integer only. The next that we have seen this how to check the dimension. उसके पहले और एक चीज सीख लेते हैं which is somewhat related to this only. That is D type. D type. ठीक है, D type क्या होता है? It's a like assigning a single data type to an entire array. ठीक है, assigning a single data type to an entire array. अब तक का ये समझ में आया कि हाउ वी आर कन्वर्टिंग द लिस्ट इनटू एन एरे. एक लिस्ट थी, उसको हमने एरे में इस तरीके से कन्वर्ट किया. एवरीवन गेटिंग दिस? हाउ वी कन्वर्टेड लिस्ट इनटू एन एरे. अगर समझ में आया है तो यस टाइप करो, अदरवाइज नो टाइप करो.
Mr. Gol Kumar, yes. Others. Okay, 1 second. Okay. Yes, yes, yes. चलो, तो taking back, taking you back to again, what we are learning here is, ठीक है, ये समझ में आ गया रहेगा तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो हाउ वी कन्वर्टेड लिस्ट इनटू एन एरे, बस np डॉट एरे के लिया, उसके अंदर हमने लिस्ट ऐड कर दी, एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द लिस्ट वी गॉट द आउटपुट, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर, इसके अंदर स्ट्रिंग था इसलिए वी गॉट एवरीथिंग एज अ स्ट्रिंग, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था इसलिए वी गॉट एवरीथिंग एज अ कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर फ्लोट नंबर था, दैट्स व्हाई वी गॉट एवरीथिंग एज अ फ्लोट, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। Now let's try to understand this d type function in the numpy, ठीक है, d type function in the numpy. So यहाँ पर हम क्यों सीख रहे हैं d type? So let me just pick anything from here. Let me just take this one, ठीक है। मैंने कह दिया array equals to numpy dot array, और उसके अंदर ये एक string है, ठीक है, इसके अंदर एक string है, एक स्ट्रिंग है, या फिर मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर ही रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो नाउ आई हैव दिस, लेकिन अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड इनटू व्हाट, एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड इनटू व्हाट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई डोंट वांट दिस, लाइक इफ आई रन दिस everything will get changed into a complex number, but if I want this as integer, so what I will say, I will say d type और डेटा टाइप इज इंट। अगर मैं इतना लिख दूं यहाँ पर, व्हाई वी आर गेटिंग नो एरर, सो लेट्स सी अगर ये होता है या नहीं। अच्छा, एक्चुअली दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुडंट हैव बी देयर, इसके साथ हो सकता है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से वी हैव 7.0 also और 8.1 also, ठीक है। सो नाउ इट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, सारा फ्लोट में कन्वर्ट होगा। Why and now if you see, अगर आप कहते हो कि d type is equals to integer, and now if I run this, what will happen is everything will get converted into what, an integer, right? Previously complex number क्यों नहीं हुआ? So you cannot change any complex number into other, for other data type except string, ठीक है, except string. So हमारे जो फ्लोट है वो सारे इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए। सो यू स्पेशली मेंशन कि जो डी टाइप है, आपका जो डेटा टाइप है, यू वांटेड इंटीजर, ओके, यू वांटेड इंटीजर, so that's why you got it converted into what, integers, even though we had this is a float, this is a float, this is a float, okay, now this got converted into what, integer, ठीक है, what integer. So let me just create one more example for you guys, ठीक है। array equals to np dot array, ठीक है, np dot array, and इसके अंदर I wanted to pass let's say 2 comma 4 comma 6.0 comma 8, ठीक है, 6.0 comma 8. If I run this, I will again get all the floats because this is a float, right? These are all the floats. So now if I say d type equal to let's say complex, ठीक है, अब मुझे ये सारे नंबर कॉम्प्लेक्स में चाहिए, that's what I am saying here, right? That's what I am saying here. So how can I do it? Just मुझे d type equals to complex कह देना, and then I will get everything into get changed into and complex number, okay, complex number. ये समझ में आ रहा है कि how we are changing this, right?
इंट फ्लोट इंटू किस में चेंज कर दिया हमने, इंट में चेंज कर दिया, या फिर कॉम्प्लेक्स और बाकी सारी चीजें लेट्स से इंट हो गया या फिर फ्लोट हो गया which got changed into what complex. Have you got this? If you have got this, type yes quickly. If you have got this, type yes, yes, yes. Okay. Some more. Yes, understand, understood. Good. अगर आपको ये समझ में आया है, so I have a small question to you guys. Hmm, I have this numbers equals to uh, np dot array और उसके अंदर I have all this 1 comma 3 comma 5 comma 7 comma 9 all the or odd numbers. Okay, all the odd numbers. If I print this, I get the same output. Okay, I get the same output. But the thing is, these all are integers, guys. These all are integers. So I wanted to convert these integers into floats and string. Okay, what is my objective here is I want to convert these numbers into float first. ठीक है, and इसी को मैं यूज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग. सो नाउ गिव मी द कोड टू डू दिस. ठीक है, इसको कोड कोड दे दो मुझे कि हाउ डू आई राइट दिस. गिव मी अ कोड फॉर फर्स्ट फ्लोट के लिए दे देना एंड देन सेकंड स्ट्रिंग के लिए दे देना. Quickly, you have 1 minute for float and another minute for string. 1 minute for float, another minute for string. Understood? ये कर सकते हैं या थोड़ा मुश्किल जा रहा है? मेरे साथ कोड लिखना लिखते चलो गाइस. जितना साथ साथ करेंगे, there is huge chances that we will be understanding all these things very easily. ठीक है. So I think 1 minute is gone. Quickly, guys. Understanding all these. Anyone? Waiting for last reply. ठीक है. Someone tried import numpy as np. Then we say this. Float numbers for as type. Yes, as type भी use कर सकते हैं. As type भी use कर सकते हैं. We will learn this as type also, but अभी d type सीखना था. चलो ठीक है. Let's try this also. ठीक है. As type भी use कर सकते हैं. If I run this float numbers, so I will get everything into a float also. So this is also something that you guys can use.
बट नाउ एज टाइम हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले जो ये था, इसको कैसे हम फ्लोट में कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट। ओके, डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट। फ्लोट का स्पेलिंग गलत हो रहा है क्या? फ्लोट ऐसे ही तो है। ठीक है। So if I run this and if I ask for numbers, if I ask for numbers, I will get the everything into a float, right? Everything into a float. So how we will be doing for string now? String के लिए कैसे कर सकते हैं? Quickly guys, quickly string के लिए कैसे कर सकते हैं? इन्होंने कहा d type equals to string. Yes, this one is right. This one is right. So now if I say this, okay, अरे जैसे कि वैसा है, हमने कहा d type equals to string. तो स्ट्रिंग को हमें स्ट्रिंग में ऐड करना होगा, ठीक है। डी टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग। नाउ इफ आई रन दिस, आई विल गेट एवरीथिंग चेंज्ड इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। एवरीथिंग चेंज्ड इनटू स्ट्रिंग। ऑलराइट, एवरीथिंग चेंज्ड इनटू अ स्ट्रिंग। सिंपल था, राइट? सिंपल था। और एक ट्राई करते हैं, ठीक है, और एक ट्राई करते हैं। इधर अभी सारे ही एग्जांपल दे दिए गाइस। लाइक फ्लोट था, उनको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, फ्लोट में चेंज कर सकते हैं इंटीजर्स को। कॉम्प्लेक्स, लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको इंटीजर में या फ्लोट में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। सो नाउ वी हैव आल्सो गॉट द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। तो अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, सो दैट इज समवॉट अ स्पेशल एग्जांपल, जिसमें लेट्स से यू हैव ए array, okay, you have an array, जिसमें you are saying np dot array, and what you guys have is, let's say you have number, integers or floats, ठीक है, or even you have a string of 55, ठीक है, you have a string of 55, right? And if you say array, so what will happen, everything will get changed into what? स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा बिकॉज दिस आर स्ट्रिंग, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग में चेंज होता है। अगर 55 नहीं रहता तो एवरीथिंग वुड हैव गॉट चेंज्ड इनटू व्हाट? चेंज्ड इनटू व्हाट? फ्लोट, ठीक है। सारा ही फ्लोट में चेंज हो गया रहता था। नाउ सिंस वी हैव अ स्ट्रिंग, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग नाउ। बट समटाइम्स देयर विल बी अ सिचुएशन, guys, sometimes there will be a situation where you want where you want everything to be as is, ठीक है। जो जैसे जैसा भी मेरा लिस्ट है, whatever my list is, I want my array to exactly same. So in that case you will say d type equals to object, ठीक है। d type equals to object. So if I run this, I get everything as is, कि 2 integer था, 3 float था, 4.1 float था, 55 was string and 8 was an integer, ठीक है। So there will be a special condition when you will be needing, or you will want your data type to be as is, जिसमें you want your data type as float, string, complex। अगर इसके अंदर में complex भी ऐड कर दूँ, शायद ये complex number है या नहीं है, not sure। 7 plus 0j, तो let's see, yes, you can see complex number भी complex number ही है, ठीक है। So there will be a like if you say data type equals to zero object, okay, if you say data type equals to object, it will keep everything as is, ठीक है। जैसे ही था वैसे ही, जैसी लिस्ट थी वैसी ही लिस्ट रहेगी, ठीक है। जैसी लिस्ट थी वही से वैसी ही लिस्ट रहेगी। तो व्हाट वी हैव सीन इन डेटा टाइप, डी टाइप में हमने सीखा, सो द नेचर ऑफ एरे इज होमोजीनियस, ठीक है, कि अगर इसके अंदर फ्लोट्स है तो इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू अ फ्लोट। बट देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू वांट इंटीजर्स ओनली, तो यू विल से डी टाइप इक्वल्स टू इंटीजर। देयर विल बी अ सिचुएशन व्हेन you will want every number to be complex number, so you just have to say d type equals to complex, so everything will get changed into complex number। And again if you want everything into a float, ये सारे integers थे, you wanted float, तो what you said, d type equal to float।
तो ये एज टाइप एक फंक्शन है, इसको यूज करा जाता है टू चेंज इनटू वट एवर डिजायर्ड फॉर्मेट, ठीक है। So this and this almost works the same, but this has like a very good features, और थोड़ा easy है ना, like ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। You will just take the whatever the array you had, और array को हमने as type कह दिया, तो we will learn this as type also. And then this second is numpy dot array. इसके अंदर you said कि you want this every number to be a string, so you got every number to a string. And in a special case you said, what you said, that object, you want object, सारी ही चीजें object like जैसी थी वैसी चाहिए, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगी. So now if you check type of, let's say, क्या था हमारा, array, type of array, और इसके अंदर अगर आप ये जीरो आइटम चेक करते हो which is 2, तो it should come integer, right? ये जीरो आइटम है, right? This is a zero item. और if you now check type of array, इसका टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक है हम, और ये कौन सा एलिमेंट रहेगा, ये जीरो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है. इफ यू चेक थर्ड नंबर, थर्ड एलिमेंट which is 55, that should be a string, right? That should be a string. So you can check the types also, ठीक है. और similarly और एक अगर नेगेटिव चेक कर लिया, ये स्लाइसिंग इंडेक्सिंग हमने सीखा है, राइट? इंडेक्सिंग कहते हैं इसको, राइट? अगर मैं नेगेटिव ये इसको चेक करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स आएगा, राइट? माइनस वन एलिमेंट रहेगा, राइट? माइनस वन एलिमेंट रहेगा. सो इसको हम स्पेशली इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं. इंडेक्सिंग, इफ आई से इंडेक्सिंग, ठीक है. इंडेक्सिंग क्या रहेगा, तो दीज आर योर, दिस इज काइंड ऑफ अ लिस्ट. ये जीरो आइटम है, दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है. और नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर देखें, दिस इज माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स, ठीक है. ये हमने स्ट्रिंग में भी सीखा, लिस्ट में भी सीखा, टपल में भी सीखा. गेस टपल में नहीं होता है, right? And I think in the dictionary also we have seen. So indexing or slicing is something that everyone should know by the time. Okay, everyone should know by the time. Okay, यहाँ तक कोई confusion? Any confusion? Any confusion? और all clear? अब तक all clear है, नहीं है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम ही बाउंसर जा रहा है, फिर से बताओ. All clear? Clear? All clear? Clear? सही है. Okay, so let me continue then. किसी को भी डाउट है छोटा मोटा भी, वी कैन टॉक अबाउट इट गाइस, ठीक है. वी कैन टॉक अबाउट इट. ऑलराइट, कमिंग बैक टू वेयर वी वर, ठीक है. हमने क्विकली देखा व्हाट इज numpy, हमने देखा हाउ टू इंपोर्ट इट, हमने देखा हाउ टू चेंज द लिस्ट इनटू अ numpy array. तो बस numpy डॉट array कह लो, यू विल गेट चेंज्ड द लिस्ट, पर्टिकुलर लिस्ट इनटू एन array, ठीक है. उसके बाद हमने देखा दिस डी टाइप, ठीक है. डी टाइप में हमने बस ये देखा कि हम जो भी वट एवर द लिस्ट वी हैव, उसका जो भी डेटा टाइप चाहिए, डे टाइप मीनिंग डेटा टाइप, ठीक है. जो भी डिजायर्ड डेटा टाइप चाहिए, यू कैन सेट दैट डेटा टाइप, ठीक है. इफ यू सेट इंटीजर, यू विल गेट इंटीजर. इफ यू सेट कॉम्प्लेक्स, यू विल गेट कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड वी हैव आल्सो क्विकली सॉ द इंडेक्सिंग. नाउ कमिंग बैक टू एंडिम, ठीक है. numpy डायमेंशन, ठीक है. numpy डायमेंशन, सो numpy डायमेंशन आपको dimensions देगा of an array. It will give you the dimension, whatever the dimension it has. तो dimension क्या होती है, that also you will get to know इसमें, ठीक है. So this is called as single dimension, ठीक है. इसको हम single dimension कहेंगे. single dimension, इसको इसको single dimension कहेंगे. और इसको कहेंगे डायमेंशन, डबल डायमेंशन. डायमेंशन किसको कहेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यही से.
डबल है, इसमें क्या डबल डायमेंशन है, यू हैव टू लिस्ट, और वो दोनों लिस्ट एक दो लिस्ट के अंदर है, मतलब बेसिकली यू हैव, ये जितना भी लेयर बढ़ेगा ना आपका, दिस दिस लेयर, ये आपके डायमेंशन बढ़ाएगा। थ्री थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन कैसे रहेगा, एक सिंपल एग्जांपल है, मैं बस ऐसे करूंगा 1 2 3, और इसके अंदर 2 5, अगर मैं, अरे 3 5, इसको अगर आप चेक करोगे तो ये थ्री डायमेंशन हो गया, ठीक है। Anyone would like to add, give me 4 and 5 dimension, 4 and 5 dimension list या array दे देना, ठीक है, 4 या 5 डायमेंशन array, ठीक है। फर्स्ट वन डायमेंशन सिंगल डायमेंशन पता चल गया, टू डायमेंशन पता चल गया, ये दिस इज अ थ्री डायमेंशन, एंड 4 and 5 डायमेंशन, 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन किस तरीके से दिखता है, डाई डिमेंशन हो गया गाइस, 4 and 5 डायमेंशन कैसे रहेगा, क्विकली गाइस, ठीक है, बताओ मुझे। सो नाउ इफ आई वांट टू चेक कि मैं बस कह रहा हूँ कि दिस इज 2 डायमेंशन, वन डायमेंशन, दिस इज 1 डायमेंशन, सो इफ आई से ये एरे है राइट, इसको मैं कह देता हूँ कि एरे डॉट नमपाई, सॉरी एरे डॉट ndim, इट विल गिव मी डायरेक्शन डायमेंशन एज 1। अगर मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको इफ आई पिक दिस एंड पुट इट इनटू एन एरे, और अगर मैं इसको कहता हूँ array dot ndim, it will give me as 2, so 2 dimension। if I pick this one also, okay guys, if I pick this one and someone has wants to join, someone wanted to join, okay, so if I pick this and if I add it into an np dot array, ठीक है, np dot array, और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ array के अंदर, and now if I say array dot ndim, ठीक है, array dot ndim, so I should get 3 dimensions, right, 3 dimension, so this is also 3 dimension, ठीक है, उसके अंदर instead of this one we have this, we can also have multiple, uh, some wants to join, got in, Suha said this is 4 dimension, this is fifth dimension, this is fourth dimension, okay, उसको मैं एक मिनट में देखता हूँ, ठीक है। So now if I add this 6 7, this is also a 3 dimension, ठीक है, ये हो गया या ये हो गया। Now let's check fourth dimension जो मिस्टर सुहास ने हमें दिया है, कि if this is a fourth dimension और ये 5 dimension भी है, this is a, अच्छा this is an array, 5D array 4D array, ठीक है। So मैं इसको पहले उठाता हूँ, I will keep this as an example, 1 2 3 4, okay, this is right, एंड फिफ्थ डायमेंशन कैसे इन्होंने लिया है, कुछ इस तरीके से लिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एरेस, ठीक है, एरेस। तो लेट्स ट्राई एंड चेक हम जो कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। तो हमने ये ले लिया, दिस विश्वा से कि भाई ये तो फोर्थ डायमेंशन है, तो हम कहेंगे एंड 4 डायमेंशन है या नहीं है, लेट्स चेक। तो एरर मिल गया हमें, बिल्ट इन फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, बिकॉज यहाँ पर हमने ये नहीं डाला है गाइस, ठीक है, ये नहीं डाला है। सो नाउ वी शुड गेट 4, ठीक है, नाउ वी शुड गेट 4, सो यू शुड बी वेरी cautious about these parentheses guys, okay, you should be very cautious, and this is your fifth dimension। So यहाँ पर we have these parentheses clear, 1 2 3 4 है, so हाँ सी ये 1 2 3 4 है। So if you want to say ये 5 है तो इसको और एक डाल देंगे। Now if I say array dot ndim,
So I should get 5 as आउटपुट. ठीक है, 5 as a output. Alright. So हमें समझ गया कि how we can calculate 4D, 5D, 3D, 2D and 1D. ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन एरे. ठीक है, इनको ये तो लिस्ट है, बट नाउ दीज आर एरे. इनको एरे कहता है. ठीक है, एरे जिसके सामने एरे लिखा जाएगा वो एरे. जिनके सामने फ्रोजन लिस्ट, फ्रोजन डिक्शनरी लिखा जाएगा वो फ्रोजन रहेगा, राइट. उसी तरीके से जिसके सामने एरे है, दिस इज एरे. इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा, राइट गाइस, ध्यान में रखना कि वो कहेंगे कि ये टेक वन एरे. ठीक है, ऐसे ही बोल देंगे वो. So you have to you know take one list and convert that one list into an array. ठीक है. So this is one dimension, this is two dimension, this is three dimension, four dimension, five dimensions, like this. ठीक है. So if this is clear, if this is clear, तो ये सामने वाला this topic is very easy for you to understand now. ठीक है. इनका क्या कहना है, हमने ndim कह लिया, now ndmin. ठीक है, what's the function name is ndmin. ठीक है, या ndmin ही है क्या? यस. ndmin. ठीक है. सो इसको, इसका मीनिंग क्या है, कन्वर्टिंग लोअर डायमेंशनल एरे इनटू हायर डायमेंशनल एरे. ठीक है, कन्वर्टिंग लोअर dimensions array into higher dimensions array. ठीक है. So let me make you understand this one. ठीक है, let me make you understand this one. हाँ, one more thing we must understand कि एक array है, इसके पहले का ही बता रहा हूँ. ठीक है, ndim का ही बता रहा हूँ. तो np डॉट array अपन आपने पकड़ लिया और उसके अंदर you are just passing this 2.3. ठीक है, this is I think array तो ना दे. ओके, दिस इज जस्ट एन एरे. ठीक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं. ठीक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं. सो इसका आप एंडिम चेक करोगे, सो व्हाट यू विल गेट जीरो. ठीक है. तो डायमेंशंस इस स्क्वायर ब्रैकेट से कैलकुलेट होता है. ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी स्क्वायर ब्रेसेस, सो द डायमेंशन इज जीरो. ठीक है, दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड नो. सो नाउ इसी को एक एग्जांपल बना के यहाँ पर ट्राई करते हैं. सो नाउ इसका जो करंट डायमेंशन है, दैट इज 0D. ओके, 0D है. सो व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द लोअर डायमेंशन एरे. लोअर डायमेंशन है, राइट, 0D है. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1D में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2D में, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. So let's say I want to convert this 2 comma 3 into 3D array. ठीक है, 3D array. So I will say nd min. What I have said, nd min equals to 3. So now, अच्छा, nd min equals to 3. So now if I check the dimension here, और यहाँ पर मैं एक print out भी कर देता हूँ, print array. ठीक है, तो ये एरे भी प्रिंट हो जाएगा और इसकी डायमेंशन भी प्रिंट है. तो पहले एरे ही प्रिंट करते हैं. सो इफ आई से एरे, सो यू कैन सी दिस 2.3 जो फ्लोट था हमारा 3D में कन्वर्ट हो गया. एंड इफ आई चेक द एरे डॉट ndim, आई विल गेट डायमेंशन एज व्हाट, 3. ठीक है, isn't it easy guys? ठीक है, isn't it easy? अगर ये easy है तो टाइप EZ in the comments. If this one is easy, type EZ in the comments, guys. Type EZ in the comments. G1 EZ, EZ, EZ. Yes. So now, if this is easy, you get a one question. So let's say you have this 1 2 3 2 comma 3 नाम से एक array है. Then you have this 4 comma 5 एक array है. And this is a 3D array. This is what, a 3D array.
Can we change this into 1D? Okay. Can we change this into 1D? And if we can, give me a syntax. इसको कैसे 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है. I can change into and 1D. क्या आउटपुट आना चाहिए? क्विकली आई वांट दिस 3D array. ये 3D array दिख रहा है, राइट? 3D array समझ में आ रहा है हमें. This is a 3D array. 1, 2, 3. कुछ इस तरीके से I calculate. So how do we change into 1D? How do we change into 1D? If I want to change this quickly, I'm just going ahead. अगर कोई टाइप कर रहा है तो go on. So I will say n dim nd min. ठीक है. n d min and I will say 1, right? अगर मुझे change करना है इसका, Suhas typed this one. ठीक है. He typed the same. He typed the same. And d min equals to 1. But will it change? Will it change? It will not. Okay, it will not. So basically, we cannot reduce higher dimension array into a lower dimension array. ठीक है. So this is the learning, guys. जो lower dimension है उनको आप higher dimension में convert कर सकते हो, that is good. But you cannot convert the higher dimension array into lower dimension array. Although it will not throw an error. ठीक है. ये error नहीं देगा. But it will not even change a bit. ठीक है. It will not even change a bit. Alright. Alright. If this is clear, guys. Clear all the way. Type clear in the comments. Because we have understood a lot. Okay. In terms of this is a new topic, right? This is a new topic. If this is clear, guys, type clear, right? अगर समझ में आ रहा है तो clear डाल दो. If this is clear, type clear in the comments. If this is clear, type clear in the comments. क्या सीखा हमने यहाँ पर? बस अगर ये 0 डायमेंशन है उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर ये 3D डायमेंशन है या कोई भी, like let's say let me just give you one more example. ठीक है. So num equals to num डॉट नहीं करना होगा, num equals to np डॉट array और उसके अंदर अगर मैं 2 डायमेंशनल array पास कर देता हूँ. ठीक है. 2 डायमेंशनल array मैंने पास कर दिया. 6. दिस इज अ 2D array. ठीक है. अगर मैं num और इसमें n dim कर दूं तो ये मुझे 2 डायमेंशनल array बोल देगा. बोलना तो चाहिए. और यहाँ पर array अच्छा होमोजीनियस, ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस भी पता था. तो ये 2 डायमेंशनल array. Clear. Source is clear. Source is clear. This is a 2 dimension. If I want to change this into n dim equals to 3 डायमेंशनल अगर करना है, बिकॉज दिस इज 2D राइट. 2D को मैं 3D कर सकता हूँ. ठीक है. 2D को मैं 3D कर सकता हूँ. उसको अगर मैं यहाँ पे नम प्रिंट करता हूँ so I will get this 3 dimensional array. Now you can see this is a 3 dimensional array. Okay. This is a 3 dimensional array. So these are some examples. Okay, these are some examples. Since we have these 3 dimensional array या 2 dimensional array, हम indexing सीखते हैं. The last time we saw the indexing was very easy, right? Was very easy. Let me just pick this one. लेकिन इसके पहले एक एग्जांपल ले तो सिंपल. ठीक है. सिंपल एग्जांपल है array equals to np dot array और उसके अंदर आई एम जस्ट पासिंग दिस 2, 3, 4, 5. ठीक है. एंड अगर मुझे इफ आई रन दिस
if I run this, if I want this zeroth item, so I will say array, और I will say array, और उसको zeroth कह दूंगा, ठीक है, so I will get this 2, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका एस टाइप, इसका टाइप भी आ जाएगा, ठीक है, ये इंटीजर है या फ्लोट है, तो उसी के हिसाब से इसको जीरो कर देते हैं, और इसको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर दिया तो सारा ही स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा, इसको 5 ही रखते हैं, और ये सारा ही फ्लोट में चेंज हो जाएगा बाय द वे, एनीवे लेट इट बी वॉट एवर इट इज। तो अगर मुझे फिफ्थ आइटम चाहिए तो आई विल से -1, राइट, निगेटिव इंडेक्सिंग हमने सीखी थी। अगर मुझे ये सेकेंड आइटम चाहिए तो आई विल से array equals to 1, right, 0 first. So if I run this, I will get like this 3, okay, 3. So ये indexing सीखना, ये this indexing is easy because this same indexing that we have saw where we have saw this same indexing in list also, string also, everywhere. But now this comes, ये क्या है, ये क्या है, this one is 2D array, yeah, this one is 2D array। ये 2D array को, इसका इंडेक्सिंग थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग नहीं, वही है, ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, बस थोड़ा सा अंदर जाके हमें इसको देखना होगा, ठीक है। सो नाउ आई वांट दिस एलिमेंट दैट इज 3,4, ठीक है, 3,4। सो अगर मैं ये एंटायर एक लिस्ट पकड़ू, उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, 3,4 3,4, अच्छा इसको मैं 3,5 6 कर देता हूँ। I have this one object, this one object. So इस 3,4 का क्या इंडेक्स रहेगा, 0, right, and 3,6 का इंडेक्स रहेगा 1, right. So if I say num of 0, so I should get this 3,4, right, 3, और ये 3,4 में से भी, ठीक है, 3,4 में से, अगर ये 3,4 में से मुझे क्या चाहिए, और ये 3 ही चाहिए या फिर ये 4 चाहिए, आई वॉन्ट व्हाट 4, 3,4 में से 4 चाहिए, so I will say 1, right, because this is 1th item, this is 0th item, this is 1th item, right, and now if I run this I should get 4, okay, I should get 4. So basically you need to go inside and inside and inside. So now if I take a huge, if I take a huge array, let me just take a huge array, let's say np dot array, ठीक है, इसके अंदर I have taken this 1 2 3 dimensional array, इसके अंदर I am just passing 2, 4, 5, ठीक है, 2, 4, 5, और I am passing 4 3, चलो ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और उसके अंदर I am passing 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9. So this is, एक और डायमेंशन कम पड़ रहा है क्या, हाँ, यहाँ पर एक चाहिए, यहाँ पर एक चाहिए, तो ये आपको खुद ही बताएगा, ठीक है, तो ये येलो जो है ये एक ही है, देन दिस ब्लू कम्स एंड देन दिस पिंक कम्स, ठीक है, ब्लू कम्स एंड देन दिस पिंक कम्स। So if I again take one step here, so I should get this 5, 6, 7, 8, and इसको, इसके बाहर और एक चाहिए गाइस, हाँ, wait, let me just create this and then let me just get bother about it. I said 9, 9, 8, 9, comma, उसके बाद भी कॉमा रहना चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्रिएट करना, and then I should have this, let's say one more 9, 9, 7, 7, 5. So ये हो गया हमारा पिंक एक्स्ट्रा हो गया, 2 3, I should have get this one,
क्या ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, यू गॉट दिस। तो दिस इज, अच्छा ये चार हो गए, ये तीन हो गया, सो लेट मी जस्ट गेट rid ऑफ दिस वन। Okay, now these are 3 and these are 3. I think this is also not needed. These are 3. Yeah. So इसको बस बहुत bother नहीं, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं, but you can get some arrays look like this also. ठीक है, ये बस थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए कि इतना बड़ा क्या है। अगर मैं एंडिंग चेक करता हूँ, लेट अस सी, ये हमने राइट लिखा है ना, गलत लिखा है। कहाँ गलत हुआ है? This one is right, this one is also right. What's the error is? Error is must be not slice, not tuple. Hmm, so this one is this one is this. अच्छा यहाँ पर commas चाहिए. Okay, now this is also a three dimensional array. कैसे three dimensional पता चलेगा? This one. नंबर स्टार्ट होने से पहले हमें थ्री डायमेंशनल array. ठीक है, आ, और इसको हम थोड़ा सा कुछ और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, लाइक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सो दैट विल बी अ लॉन्ग एरे, बट एज ऑफ नाउ इसको समझ लो कि दिस इज योर थ्री डायमेंशनल एरे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है मैन्युअली क्रिएट करना, बट यू कैन आस्क चैट जीपीटी ऑलवेज, कहाँ पर है हमारा फ्रेंड, यू कैन ऑलवेज आस्क दिस टू अ चैट जीपीटी कि मुझे एक एरे क्रिएट करके दो। ठीक है, थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट करके दो। Anyways, what we wanted to understand is how to do this indexing. ठीक है, indexing. I just wanted to make this somewhat harder to, कि इसके अंदर में कैसे जाऊँ। ठीक है, ये थोड़ा सा easy था। To get this 4, it was easier, right? कि 4 कैसे लेना है? सबसे पहले I want to access this 3, 4 and then from this 3, 4 I will access this 4. ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। इसका सिंपल का ही और एक एग्जांपल देंगे आप। नंबर इक्वल्स टू np डॉट array। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा 3, 4, कॉमा हमने कहा 5, 9। सो अगर मुझे 9 चाहिए गाइस, ठीक है, इफ आई वांट 9, सो व्हाट आई नीड टू डू, इफ आई इफ आई वांट 9, अब ये कोई सॉल्व कर सकता है क्या बताओ? आई वांट 9 एज आउटपुट। ठीक है, आई वांट 9 एज आउटपुट। सो फर्स्ट आई विल चेक जो मेरा लिस्ट है। ठीक है, वॉट एवर माई लिस्ट, सो दिस इज माई लिस्ट। ठीक है, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। सो दिस इज माई जीरो आइटम, दिस इज माई फर्स्ट आइटम, राइट? दिस इज माई जीरो आइटम, दिस इज माई फर्स्ट आइटम। तो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ फर्स्ट, so I should get this 5, 9, 5, 9, ये 5, 9 आ गया। और ये 5, 9 में से मुझे 9 चाहिए, दिस इज अगेन माई फर्स्ट आइटम। सो अगर मैं इसको इसके सामने और एक 1 डाल दूं, सो आई शुड गेट दिस 9 ओनली। ठीक है, आई शुड गेट दिस 9 ओनली। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट 9। ठीक है, और अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं कैसे करूंगा? आई से नंबर, नंबर के अंदर दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको मैं फर्स्ट कर दूंगा। एंड फर्स्ट के अंदर जब मैं जाऊंगा, 5 इज माई जीरो एलिमेंट, के अंदर मैं जीरो तो डाल दूंगा। सो आई शुड गेट दिस 5। ठीक है, आई शुड गेट दिस 5। एनीवन ट्राइड? नो वन ट्राइड। कूल। लेकिन ये समझ में तो आ रहा है ना कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाउ आई एम एक्सेसिंग दिस 5, 9 या 4 या 3, हाउ आई एम एक्सेसिंग। वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू। nums इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, np डॉट एरे। ठीक है, np डॉट एरे, np डॉट एरे। सो मैंने कह लिया कि सेम एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आई हैव सेड 2, 1। ठीक है, देन आई हैव सेड 8, 9, 0। ठीक है, 9, 0। तो मुझे ये फर्स्ट एक नंबर कैसे आएगा? दिस हाउ आई कैन एक्सेस दिस। आई विल सिंपली से nums ऑफ
दिस इज माई जीरोथ आइटम फ्रॉम दिस लॉन्ग लिस्ट। ये जो लंबी लिस्ट है इसके अंदर का ये मेरा जीरोथ आइटम। आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच इज सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। अभी ये पिंक जो लिस्ट है, ठीक है, लेट मी जस्ट बिगर दिस आउट। ये जो पिंक लिस्ट है, इसको मैं अलग लेता हूँ। इस अभी ये जो येलो लिस्ट है उसके अंदर ये एक जीरोथ आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, राइट। ये एक जीरोथ आइटम है, फर्स्ट आइटम। माई एम इज टू गेट दिस, तो मैं क्या कहूंगा, जीरो यहाँ पर, ठीक है। इफ आई सिंपली से जीरो, आई शुड गेट दिस 2,1, 2,1। नाउ दिस 2,1 में से मुझे 1 चाहिए, तो अभी ये क्या रहेगा, ये जीरोथ रहेगा, फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 डाल दूं, आई शुड गेट दिस 1 एज आउटपुट। I should get this one as output, that is integer 64। अगर ये इंडेक्सिंग समझ रहा है तो यस डालो, इंडेक्सिंग समझ रहा है तो यस डालो क्विकली, बिकॉज आई विल explain this. This is not really difficult example, but this will sure you will enjoy this one. If you got this, yes, नहीं तो नो डाल दो। तो हम फिर से इसको थोड़ा अच्छा समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नो डाल दो, ठीक है। एनीवन एनी स्लाइटेस्ट डाउट कि ये ऐसे कैसे जा रहे हो भाई, मुझे तो नहीं समझ रहा है। How you can go inside the list, ठीक है। anyone with no, anyone with more yes, I need 2 more yes, जिससे मुझे समझ आएगा कि हाँ आपको भी समझ आ रहा है। अदरवाइज देयर इज नॉट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट। एनीवन एनीवन, यस तो आ तो रहा है। हम्म। अगर आ रहा है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से लेट्स से सबसे पहले तो हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास 3 लिस्ट है, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इसको करने वाला, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले कह दूं, इफ आई वांट दिस, अगर ये चाहिए सबसे पहले तो हमें 2,4 3,4 चाहिए। सो ये कैसा है, ये बड़ी लिस्ट में से ये एक जीरोथ आइटम है, ठीक है, ये बड़ी लिस्ट। तो अगर मैं ये जीरो यहाँ पे डाल दूं, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये आइटम, ठीक है, जीरो, ये वाला। तो बड़ी लिस्ट में, तो बड़ी लिस्ट में ये एक जीरोथ आइटम है और ये एक फर्स्ट आइटम है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर और एक डाल देता हूँ, अरे फर्स्ट, अरे फर्स्ट, सो दिस इज माय फर्स्ट आइटम, ठीक है। ये ब्लू ब्लू लिस्ट पकड़ना, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट आइटम, दिस इज माय जीरोथ आइटम, ठीक है। ये जीरोथ आइटम है, दिस इज फर्स्ट आइटम। नाउ आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो अभी हमने इसको तो एक्सेस कर लिया है, कैसे, एरे जीरो, ठीक है। सो अभी इसको भूल जाएंगे, नाउ वी विल फॉरगेट दिस, ये कुछ था ही नहीं, मुझे ये जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। इसके अंदर मुझे ये 2,3,4,5 चाहिए, 2,3,5 चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल से, आई विल से अरे जीरो। नाउ यू इफ यू सी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है यहाँ पर, राइट। तो ये जीरो आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है। सो अगर मुझे 2,3,4,5 चाहिए, तो मैं कहूंगा जीरो आइटम दे दो भाई इसमें से। इफ आई रन दिस, आई विल गेट 2,3,4,5। अगेन मुझे 4 चाहिए, अगर मुझे 4 चाहिए तो व्हाट आई विल से आई विल से 0 2 0 1 2, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं 2 डाल दूंगा। सो व्हाट आई विल गेट इंटीजर 644, ओके, इंटीजर 644। इजंट इट इजी, मतलब बिल्कुल ही स्टेप्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। बिल्कुल स्टेप्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो बड़ा जो जायंट निकला था, दिखा हमें यार, दिस लुक्स वेरी बिग, बट व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस दिस 4, इसके अंदर से ये 4, तो हमें इजीली हमने निकाल लिया। नाउ नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस 8,
ठीक है, ये 8 हमें चाहिए। हाँ, 8 चाहिए, तो मैं इसको फिर से यहाँ पर उठा लेता हूँ और इसको, हाँ हमें क्या चाहिए, दिस दिस 8 चाहिए, राइट, दिस 8 चाहिए। सो लेट्स फोकस गाइस, ठीक है, एरे कह लिया हमने और 0। सो नाउ दिस एंटायर, ये पिंक जो लिस्ट है इसके अंदर ये ये ब्लू लिस्ट एक वन आइटम है, दैट इज 0th पोजीशन, एंड दिस सेकंड ब्लू लिस्ट इज फर्स्ट पोजीशन। अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूं, सो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट दिस 1, दिस एंटायर थिंग 5, 6, अभी माय एम इज दिस, ठीक है, माय एम इज दिस, बिफोर आई गो हियर आई शुड गो हियर। सो अभी ये पूरा एक लॉन्ग लिस्ट पकड़ लो, ठीक है, एक, उसके अंदर ये 0th आइटम है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। सो अगर मुझे ये आइटम चाहिए, दिस लिस्ट आई वांट, सो ये 0th है, ये फर्स्ट है, सो आई विल से फर्स्ट, फर्स्ट दे दो भाई, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट, 9989, ठीक है, 999 998 नहीं, उसके अंदर मुझे ये 8 चाहिए था, ये तो और इजी हो गया, ठीक है, ये और इजी हो गया। सो व्हाट आई विल से, ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आई विल से सेकंड, सेकंड दे दो भाई। सो नाउ यू विल गेट integer 64 8, ओके, integer 64 8, सिंपल है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? If you got this, type clear, type clear, क्लियर हुआ तो ही क्लियर डालना गाइस, अदरवाइज if you say clear I will ask you questions. Repeat, nice. तो हम चैट जीपीटी से अगली बार एक 3 by 3 डायमेंशनल का, गिव मी 3 by 3 डायमेंशन अरे, 4 by 4 ले ले गाइस, अच्छा ये तो बहुत ही छोटा हो गया, गिव मी 4 by 4 by 2, let's try this one, ओके, ये कुछ मजेदार दिख रहा है, ठीक है, लेट्स पिक दिस वन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये 4 आइटम्स हैं, ठीक है, और फिर हर एक आइटम में ये 2 है, ये 2 है, 2 है, 2, चलो इसको ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन, अरे कहाँ पे गया, हमने कहा, अरे इक्वल्स टू np डॉट, अरे, और इसके अंदर मैंने बस सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, लेट्स चेक ये सही तो चल रहा है, एंडिंग, यस, दिस इज द डायमेंशन इज 3, ठीक है, ये ऐसे डायमेंशन काउंट होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, सिंपल। सो नाउ वोटिंग गाइस, वोटिंग, type 1 if you want this, type 2 if you want this, type 3 if you want this, type 4 if you want this, type in the comments, मेरा फेवरेट रहेगा, आई वुड गो फॉर दिस, तो मैं 2 टाइप कर रहा हूँ, क्विकली, टाइप 1 फॉर 7 8, टाइप 2 फॉर 15 3 एंड 4, ठीक है, समवन, एनीवन, कोई चॉइसेस है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो 15 16 करना है या कुछ और करना है, एनीवन, नो चॉइसेस, अरे कुछ भी नहीं, ओके लेट मी गो विथ माय ओन चॉइस, सो आई वांट दिस 15, 16, ठीक है, कुछ तो बहुत बड़ा दिख रहा है, सो डोंट वरी, ठीक है, इसको इतना सोचना नहीं कि अरे ये तो कुछ तो अलग ही दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ इफ यू वांट दिस 15, 16, तो ये ये बड़ा लिस्ट है, राइट, पिंक इज अ बिग ह्यूज लिस्ट, उसके अंदर ये 0th आइटम है, दिस इज फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकंड आइटम, दिस इज थर्ड आइटम, I want this 15, 16. So I am dealing with this first item. ये 0th है, right? This is a 0th item. So if I say first item, I should get this blue list, right? Blue list. So if I run this, I should get this blue list. बहुत सही, ठीक है, बहुत सही.
और इसके अंदर अगर मुझे 15 16 चाहिए, ये बड़ी लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे ये 0th आइटम है, दिस इज फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकंड आइटम, दिस इज थर्ड आइटम। तो इफ आई सिंपली से कि भाई ये 3 है, तो मुझे 13 या 15 16 मिल गया। कितना डिफिकल्ट था गाइस, ठीक है। देख के तो लगता है भाई हाउ आई विल रीच एट दिस 15 16, ठीक है। बट व्हेन यू सी, इसको अगर अच्छे से देखोगे तो ये पिंक एक बड़ी लिस्ट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सोचो, अभी ये लिस्ट को जाने दो। लिस्ट 1 इक्वल्स टू, इफ आई से 3 कॉमा, if I say 4 comma 5, if I say name, and if I say राजू। राजू इसको कहते हैं बाबू, बाबू भाई, ठीक है, बाबू भाई राजू भाई। सो अगर मुझे बाबू भाई चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल से लिस्ट 1, लिस्ट 1, ठीक है। ये 0th आइटम है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, राइट, दिस इज सेकंड, राइट। सो आई विल से सेकंड, ये हमने लिस्ट में देखा था, राइट। तो मुझे बाबू भाई मिल जाएगा। बट नाउ इफ आई वांट दिस 4 5, मैं कहूंगा 1, मैं कहूंगा 1, आई विल गेट दिस 4 5। अगर मुझे 4 5 में से 5 चाहिए, तो आई विल अगेन से 1, ठीक है, आई विल अगेन से 1। सो मुझे 5 मिल जाएगा, राइट। सो इट इज लाइक, ये यही है, दिस इज दिस। बस यहाँ पर है ना बहुत सारी लिस्ट दिख रही है। सो कंसिडर दिस इज अ बाबू भाई, दिस इज राजू, दिस इज योर लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट में से मुझे और एक एलिमेंट चाहिए था, दैट इज 15 16, ठीक है, 15 16। एनी कंफ्यूजन हियर, कुछ अंडरस्टैंडिंग में गैप? इफ दिस इज क्लियर गाइस, अगर ये क्लियर है तो ऑल क्लियर, क्योंकि दिस वाज इट फॉर द टुडे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज रेज योर हैंड, स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एनी क्वेश्चंस? ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर डालो, अदरवाइज वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। Anyone else? I need 2 3, everyone guys, everyone. If you have understood this, type all clear. If you have understood this, type all clear. If you have understood this, type all clear. One more all clear. Everyone. अगर कोई क्वेश्चन है, भाई 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 भाई, ये क्या क्या दे रहा है ये? एक क्विकली ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स 1 इक्वल्स टू np डॉट अरे, उसके अंदर मैं इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ तो एकदम तहलका दिख रहा है इस, इसको मैं चेक कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स 1 डॉट एंडिंग ऑल क्लियर। आई नीड मोर ऑल क्लियर, तो मुझे आइडिया आएगा कि समझ रहा है नहीं समझ रहा है। 3 डायमेंशनल एरे है सिर्फ ये, ठीक है, 3 डायमेंशनल एरे। सो इफ आई वांट टू नो जो टेम्परेचर 20.5 पे है, उसका स्टेटस ओके है या नहीं है, या फिर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, आई वांट दिस बॉडी, ठीक है, या फिर आई वांट दिस बॉडी, ये अंदर का एकदम ही अंदर का, ठीक है, यानी ये लेते हैं, ये ले लेते हैं, दिस वन, ओके दिस वन। सो इसका लोकेशन मैं कैसे फाइंड करूंगा, हाउ विल आई फाइंड द लोकेशन, हाउ विल आई फाइंड द लोकेशन? सबसे पहले आई विल चेक जो बड़ा लिस्ट है उसके अंदर का ये लिस्ट कौन सा है, ठीक है। आई विल से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो आई विल से 2, 2 मतलब ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। उसके अंदर नाउ आई विल गेट दिस ब्लू लिस्ट, दिस ब्लू लिस्ट। इस ब्लू लिस्ट के अंदर मुझे जो चाहिए वो कौन से नंबर पे है, ये ये है, ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सो आई विल से 1 मोर सेकंड, ठीक है। एंड इस सेकंड में से मुझे जब ये मिल जाएगा, तब मुझे ये जो डिक्शनरी है ये कैसे मिलेगी, सो दिस विल बी माय अनदर लाइक 0th एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट। सो आई विल से फर्स्ट,
So I should get this. ठीक है, I should get this. So let me just try कि मुझे ये मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है. So I'm saying complex 1, उसके अंदर I have said 0, उसके अंदर said I have said sorry 2 and 1, ठीक है. So if I say this, I should get this. Temperature 30.1, status failed, ठीक है. You see, I got this, right? So this is how you can do this. Slicing कह लो इसको, indexing की जगह we should say slicing. टॉपिक का नाम गलत डालते हैं हमने. Slicing, ठीक है, slicing. So this is all about today, guys. If you have understood and enjoyed this lecture, type win in the comments. Win, win with a big win, long and so that हमारे दिन को स्टार्ट एक अच्छा मिले. स्टार्ट एक अच्छा मिले यानी एक विन से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सो हम यस बहुत ज्यादा विन, ये बढ़िया बढ़िया. सो ऐसे ही विनिंग विनिंग परफॉर्मेंस देते जाओ और पढ़ते जाओ. और watch continue let's continue this. Let's continue this tomorrow also at the 8 p.m. Someone Pawan Patel asked, bro, what is your profession? So bro, I am Mr. Pawan. I am a data scientist और AI engineer कह लो. मैं IT companies में काम करता हूँ. So I am a professional जो ये चीज़ें I implement this in my daily work. Okay. सो यस, हम क्लासेस या कोचिंग ले रहे हैं या सिखा रहे हैं डेली बेसिस पे. एंड ऑन दिस कॉल यशिका, हाउ टू गेट द एक्सेस टू दिस पीडीएफ. पीडीएफ यानी दिस टुडेज फाइल. यस, इसको आप गिटहब पर जा सकते हैं. आई विल शेयर द लिंक इन द इन द ग्रुप एंड ऑल्सो ऑन द इसका ये है यूट्यूब पे. अगर आप देख रहे हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में है. सो आई विल क्रिएट यहाँ पर एक नमपाई से एक फोल्डर. अभी ये ऐड नहीं किया है तो आई विल ऐड दिस. नमपाई के अंदर आप असाइनमेंट्स भी चेक कर सकते हो. ओप्स का पूरा लेक्चर यहाँ पर दिया है और ये नोट्स भी मैंने ऐड करा है. इफ यू वांट टू सी एब्स्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से है. ऑल्सो ऑल द नोट्स आर देयर. So go through this. If you like this repo, give me a star here. And all the starting से हम जितना भी सीखा है यहाँ पर है और YouTube पे भी मिल जाएगा आपको. यहाँ पे कुछ वीडियोस मैंने लिंक दिया है. So everything is there. और मैं I will push this also. NumPy का एक फोल्डर बना कर I will add this. Okay. Alright guys. See you in the next lecture. Bye bye.